तो हम जो आज बात कर रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल टूल टू अकम्प्लिश आवर ड्रीम्स, हमारे सपने पूरे करने के लिए जो सबसे बड़ा पावरफुल टूल है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल लाइन है ये। जो भी हम सोचते हैं, हाय मेरा तो काम ही नहीं होने वाला है, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो लेट हो जाऊंगा, मैं तो लेट हो जाऊंगा, मैं तो लेट हो जाऊंगा, पक्का लेट हो जाओगे। व्हाट आर यू गेटिंग दिस थिंकिंग? स्पीकिंग, अरे भैया तू पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर वो बच्चा फेल हो जाता है। मैंने बोला था ना फेल हो जाए, अरे तूने बोला करके ही वो फेल हो गया। इट्स सिंपल। Sir, I have a few questions if you don't mind. Yeah. Sir, while we're talking about this, how our thoughts affect the way we function towards our destined goals or maybe dreams, or sir, I would love to know about this. Like, if humans can't let thought be thought, if we just do that, if we just start living like this is just a thought, and let's just not think about this thought too much and let it go, and we can move on to our thing, right? Like, for example, if I'm destined to become a great person in a company, I'll have to work hard enough for that. There's no other way around it. I mean, yeah, obviously there's a way that I can become another person within another company, but like, to be the best guy in that particular company, there's no other way around it, right? I mean, if we focus on our thoughts becoming the valuable or the most precise thoughts, don't we feel, don't you think, or I would love to know about your perspective on this, ki how would you see that and how that affects our law of attraction? Okay. So आपको पहला थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा समझ लो. So I mean it will get clear because this was a very long question, very confusing, but I have understood what you want to understand. I'll clear it out. So first थोड़ा और समझ लो इसके अंदर. उसमें ना ये तो मैंने एक सेंटेंस बोला है. अब उसके ऊपर मैं आपको I can speak for 40 hours continuously, you know. मतलब उसमें स्टेप ये करना, ये नहीं करना, ये इतना ईजी नहीं है. फिर उसके बाद में I mean you'll have to change yourself, your thought process चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है. So उसको टाइम लगता है, राइट? तो हमारा क्या काम है? सपने देखना. हम सपने देखेंगे और बड़े सपने देखेंगे. इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल. अजीम प्रेम जी ने कहा है. इट्स वेरी सिंपल. ड्रीम बिग. थोड़ा बड़ा सपना देखो. मैं तुमको बताता हूं हाउ टू अकम्प्लिश देम. ये साइंटिफिक है. 2 + 2 = 4. इतना जितना सिंपल है उतना ही आपके सपने पूरे करना सिंपल है, चाहे कुछ भी हो. It is so simple. Whatever it is, whatever your dreams are, anything. I mean, I don't want some 1 crore, 2 crore वाले dreams. I want a house in London. I want a private jet, or I am going on a holiday. I mean, I want this kind of dream. But उसको लिए हम शुरुआत करेंगे धीरे धीरे से. But now I have reached a stage where I can think of anything, and I know the techniques. So this is all about law of attraction. So are you aware of, since you all came late, law of attraction about you? You are the basic fundamentals are clear about. So it's a law of nature. Law of attraction जो है वो एक प्रकृति का एक नियम है. वैसे ही होता है. जो भी आप सोचते हो उसको अट्रैक्ट करते हो. जो भी आप बोलते हो उसको अट्रैक्ट करते हो. जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है. बिलीफ क्या होता है उसके ऊपर मेरा 1 घंटा का लेक्चर है. Are you getting? So every topic what I am talking now is just a outline, basics. So try to understand. In short, I will summarize. Om Shanti Om का जो डायलॉग है, you know the dialogue? किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात जुड़ जाएगी वो आपको दिलाने के लिए. It is so simple, and it always works. How it has worked in my life, I will share with you now. मतलब एक एक चीज़ जब मैं आपको बताऊंगा ये how I have used it, how I have accomplished things, how I have dreamt of something, how I got it. ऐसे एक नहीं है, लिस्ट है लंबा. 3 साल में और उसकी टेक्निक, क्योंकि मुझे ये सब समझ में आ गया. ये जो मैंने 12-15 किताबें पढ़ी, 15-17, उसको एक बार नहीं पढ़ी, क्योंकि आई सॉ वीडियो ऑफ बॉब प्रॉक्टर. एवरीबडी नोज बॉब प्रॉक्टर? नो? सो सीक्रेट मूवी में, एवरीबडी हैज सीन द मूवी सीक्रेट.
सो ही इज़ वन ऑफ द स्पीकर इन दैट, ही इज़ गॉट अ इंस्टीट्यूट इन यूएस. तो उसने बोला एक वीडियो में, थिंक एंड ग्रो रिच जो किताब है वो मैंने 100 टाइम पढ़ी है, 100 टाइम. द ओल्ड मैन इज सेइंग आई हैव रेड दिस बुक 100 टाइम्स एंड देन आई गॉट द आंसर. दिस बुक्स यू कैन नॉट रीड ओनली वन टाइम. कुछ नहीं समझ में आता. ये एक बार ये बुक समझ में आ गई, यू आर सेट फॉर योर लाइफ. सो दैट थिंक एंड ग्रो रिच बुक बाय नेपोलियन हिल, दैट वाज रिटन इन द ईयर 1940. 1940 में वहाँ के जो, ओके, सो नाउ दिस बुक इज रियली वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. उसकी तो 5-6 किताब रख देना. मतलब आई हैव 1 or 2 बुक्स हियर, आई हैव 1 or 2 बुक्स इन माय मुंबई ऑफिस, आई हैव इन माय पूना ऑफिस. मेरा पूना घर है इधर, एवरीवेयर आई हैव केप्ट इट. एंड मेनी टाइम, बहुत दिन तो मैं आई यूज्ड टू ट्रेवल विद दैट बुक, यू नो. इतनी बार पढ़ लिया मैंने. पूरा फॉर्मूलाज लिखा हुआ है. उस बुक का एंडोर्समेंट हैज बीन डन बाय 2 presidents ऑफ अमेरिका, 5 richest men ऑफ अमेरिका. एंड्रयू कार्निक वॉज द रिचेस्ट मैन इन 1940, 1950. फिर ईस्टमैन कोडाक कंपनी, जिलेट कंपनी, मतलब पूरा लिस्ट है. उन्होंने उस बुक को एंडोर्स किया है. सो यू कैन अंडरस्टैंड. एंड इट इज अ 1940 बुक. इट्स एन अमेजिंग, जबरदस्त बुक है. सपने देखो, पूरे करो, कैसे करना सब बताया, सब फॉर्मूलाज है. और ऐसी मैंने 15-17 किताबें 4-4, 3-3, 4-4 पढ़ के, नाउ आई नो हाउ इट वर्क्स, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू थिंक, व्हाट टू बिलीव, हाउ टू चेंज योर बिलीफ. तबीयत खराब है तो क्या करना, ऐसे ठीक करते हैं. जस्ट इन योर थॉट्स.